Hello everyone, this is Aryan Thakkar, your coach and mentor, and welcome back to my YouTube channel on Aryan Tutorials, where in this video I'm going to start off with macroeconomic series. I know you all have been waiting for me for quite a long time, and I'm very sorry for not being able to keep up with the YouTube videos because I was on a holiday. My offline students had their half yearly examination due, and post that I was a bit occupied with all of that corrections, mock tests here and there, and so I had taken a break. But once again I'm back, and from now on you'll be getting all the regular updates and videos relating to your English, economics as well. And off later on I'm also going to take up commerce as well. Okay, so let's start with macroeconomics series. In about, I think, 14 to 15 videos will be covering up the entire macroeconomics. So stay tuned. Please like the video, share it, subscribe to my YouTube channel if you're liking my content. And don't forget to share it with your friends, because it is only through your support and your love that we as teachers do exist. आपके आशीर्वाद के बिना हम लोग कुछ भी नहीं है। एंड अगर आपको मेरा काम पसंद आता है, देन प्लीज थोड़ा सा सपोर्ट भी शो किया कीजिए। ठीक है, सो चलिए आज से श्री गणेश करते हैं शुभ आरंभ, शुरू करते हैं अपना मैक्रो इकोनॉमिक सीरीज का। नाउ एज वी नो, मैक्रो इकोनॉमिक्स आपने क्लास 11 में भी पढ़ा होगा। आई होप यू ऑल रिमेंबर दैट मैक्रो इकोनॉमिक्स इज अबाउट द स्टडी ऑफ द एंटायर इकोनॉमी एज अ होल। सो यहाँ पे हम लोग अब इंडिविजुअल का बात नहीं करेंगे, यहाँ पे हम लोग पूरा देश, एंटायर कंट्री एज अ होल पर्सपेक्टिव को लेके पढ़ाई करेंगे। एंड जिन लोगों ने डिफरेंसेस किए होंगे माइक्रो मैक्रो के, उन्हें याद होगा कि मैक्रो इकोनॉमिक्स को इनकम थ्योरी भी बोला जाता है। इट डील्स विद द थ्योरी ऑफ इनकम। Therefore, to begin with the first chapter, we have theory of income and employment. ठीक है, now if you are wondering कि ये नोट्स वगैरह जो है मैं यूज कर रहा हूं, ये आपको कहां से मिलेगा, for that if you are an Android user, you need to download my app Aryan Tutorials, and macroeconomics as a paid course मात्र 249 rupees में it is launched over there. You can go check it out and आप उसको purchase कर सकते हो. So is the case with microeconomics as well. Trust me, these are one of the best notes. It is specially curated for your ISC economics students. It's a must. Each and everyone should have this. इसके अलावा आपको textbook का भी requirement नहीं है. And if you are an iOS user, then you need to download Class Plus app. And after that, you'll have to punch in my organization code, which is PLYMMV. मैं नीचे सब कुछ लिख दूंगा, आप जाके उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से चेक करके आप एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, सो विदाउट एनी अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। नाउ सीबीएसई में इस चैप्टर को, थ्योरी ऑफ इनकम एम्प्लॉयमेंट को, हम लोग इनकम डिटर्मिनेशन के नाम से भी जानते हैं। थ्योरी ऑफ इनकम डिटर्मिनेशन। सो अगर आप नेम ऑफ द चैप्टर को ब्रेक करो तो आपको क्या समझ में आता है? इनकम डिटर्मिनेशन। What determines income? So my first question to you, or to you guys, like your first question while studying this chapter to yourself should be that what determines income? इनकम कैसे डिटरमाइन होता है? वो कौन से चीज है जिसकी वजह से इनकम जनरेट होता है? नाउ द आंसर टू दैट वुड बी, आई वुड से दैट income is the outcome. What is the meaning of outcome? Outcome का मतलब होता है result. ठीक है, income is the outcome of production of goods and services in the economy. यानी अगर देश में प्रोडक्शन होगा, सो उस प्रोडक्शन होने के वजह से हमारे जो इकोनॉमिक एंटिटीज है वो एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करेंगे. So due to production, it will result in economic interaction, right? There would be an economic interaction between different entities of the economy, and उस economic interaction का result होगा income generation. उसकी वजह से income generate होगा. Now talking about entities, तो हमारे economy में कितने entities हैं? How many entities do we have in an economy? In total 4. ठीक है, 4.
One is your household, second would be your firms, third would be your government, and fourth would be your foreign sector. ये है हमारे चार इकोनॉमिक एंटिटी। एंड जब इनके बीच में इकोनॉमिक इंटरैक्शन होता है तो उससे इनकम जनरेट होता है। आइए मैं आपको एक सिंपल इंटरैक्शन करके दिखाता हूं एंटिटीज के बीच में। सो लेट मी टेक हाउस होल्ड एंड लेट मी टेक फर्म। ठीक है, हाउस होल्ड एंड फर्म। अब हाउस होल्ड कौन है? क्या मैं बोलूं कि हाउस होल्ड को आप बोल सकते हो दे आर दी ओनर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यानी कि लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, इन सब के मालिक जो ओनर है वो हाउस होल्ड है। हमारा ही लैंड है जो प्रोडक्शन में यूज होगा, हम लोग रेंट पे देंगे। हम ही लेबर है, हमारा ही पैसा बैंक के थ्रू कैपिटल के फॉर्म में इंडस्ट्री के पास पहुंचता है। एंड हम ही फ्यूचर के एंटरप्राइजिंग एंटरप्रेन्योर्स भी बनेंगे आगे जाके। सो वी आर दी ओनर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। एट द सेम टाइम हाउसहोल्ड्स आर आल्सो द एंड कंज्यूमर्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कि हाउस होल्ड का काम है गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करना, राइट? जबकि फर्म कौन है? क्या मैं बोलूं कि फर्म इज अ प्रोडक्शन यूनिट? फर्म इज नथिंग बट जस्ट अ प्रोडक्शन एंटिटी, प्रोडक्शन यूनिट। सो बेसिकली फर्म क्या करता है? फर्म गुड्स एंड सर्विसेज बनाता है, प्रोड्यूस करता है। कैसे बनाता है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को कंबाइन करके, राइट? अब क्योंकि फर्म को गुड्स एंड सर्विसेज बनाना है, क्यों बनाना है? क्योंकि हाउस होल्ड को चाहिए। हाउस होल्ड तो एंड कंज्यूमर्स है, वो लोग तो गुड्स एंड सर्विसेज मांगेंगे, तो फर्म को उन्हें बनाना है। बनाने के लिए, उन गुड्स एंड सर्विसेज को बनाने के लिए फर्म्स को क्या चाहिए? फर्म्स को भी तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का रिक्वायरमेंट होगा, क्योंकि बिना लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज के फर्म भी तो प्रोडक्शन नहीं कर पाएगा। एंड सिंस हाउस होल्ड इज द ओनर ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, बोल के हाउस होल्ड फर्म को ये फैक्टर सर्विसेज देगा, राइट? तो हाउस होल्ड से फर्म के पास क्या जाएगा? फैक्टर सर्विसेज जाएगा इन द फॉर्म ऑफ क्या क्या? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। अब ये जो फैक्टर सर्विस गया हाउस होल्ड से फर्म के पास, ये फ्री में तो नहीं जाएगा। बदले में अगर फर्म ने इन फैक्टर सर्विसेज को हायर किया है या परचेज किया है, तो फर्म को भी तो इन फैक्टर सर्विसेज के बदले फैक्टर पेमेंट करना पड़ेगा, राइट? फैक्टर पेमेंट करना पड़ेगा। जैसे कि लैंड के ऊपर क्या पे करेगा? रेंट। लेबर को क्या देगा? वेजेस या फिर सैलरी। कैपिटल पे क्या देगा? इंटरेस्ट। एंड एंटरप्रेन्योर को क्या देगा? प्रॉफिट, राइट? तो ये हो गए हमारे सम एग्जांपल्स ऑफ फैक्टर पेमेंट। तो देखिए तो हाउस होल्ड के लिए इनकम जनरेट हुआ कि नहीं हुआ? सी, हाउस होल्ड ने रेंट के फॉर्म में, वेजेस सैलरी के फॉर्म में, इंटरेस्ट के फॉर्म में या प्रॉफिट के फॉर्म में पैसा कमाया, इनकम कमाया। अब नेक्स्ट, फर्म इन फैक्टर सर्विसेज को यूज करके, इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को यूज करके क्या बनाएगा और क्या देगा हाउस होल्ड को? गुड्स एंड सर्विसेज, राइट? गुड्स एंड सर्विसेज मिलेगा हाउस होल्ड को। अब बदले में फ्री में तो गुड्स एंड सर्विसेज मिलेगा नहीं, राइट? अब हाउस होल्ड को भी तो कुछ पे करना पड़ेगा फर्म को। क्या पे करना पड़ेगा? पेमेंट देना पड़ेगा। किसका पेमेंट? पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, क्योंकि हाउस होल्ड ने जो पैसा कमाया है, हम जो भी इनकम कमाते हैं, दैट इज पार्टली कंज्यूम्ड एंड पार्टली सेव्ड। तो ये जो कंजम्पशन वाला हिस्सा है, ये तो पेमेंट जाएगा ना अलग अलग फर्म को फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज दैट हाउस होल्ड परचेजेस। तो देखिए तो फर्म के लिए भी इनकम जनरेट हुआ। मतलब ये बात तो सही है कि इकोनॉमिक इंटरैक्शन जब होता है, when there is an economic interaction between different entity, that leads to generation of income. So income indeed is the outcome, is the result of production of goods and services। जब प्रोडक्शन हो रहा है उसकी वजह से इकोनॉमिक एंटिटीज इंटरैक्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से इनकम जनरेट हो रहा है। तो अगर मैं आपसे पूछूं, अगेन माय क्वेश्चन था व्हाट डिटरमाइंस इनकम, तो इसका जवाब निकला, इसका आंसर निकला प्रोडक्शन। द आंसर इज प्रोडक्शन। प्रोडक्शन डिटरमाइंस इनकम। देश में कितना प्रोडक्शन होगा उसके हिसाब से डिपेंड करेगा कितना फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का रिक्वायरमेंट है, एंड उसके हिसाब से एक एस्टिमेशन पता चलेगा कि हाउस होल्ड कितना इनकम कमा सकते हैं। बट अब अगर मैं आपसे पूछूं
अब अगर मैं आपसे पूछूं दैट व्हाट डिटरमाइंस प्रोडक्शन, देन कि इनकम कितना होगा, आपने कहा प्रोडक्शन के ऊपर डिपेंड करता है, तो मैं आपसे पूछूं कि प्रोडक्शन कितना होगा, वो किस पे डिपेंड करता है, तो आप क्या बोलोगे? प्रोडक्शन किस पे डिपेंड करेगा? आप खुद ही सोचो, आप कितना प्रोड्यूस करोगे? आप उतना प्रोड्यूस करना चाहोगे जितना आपके प्रोडक्ट का डिमांड होगा, राइट? तो आप जितने भी हाउस होल्ड्स है इकोनॉमी के अंदर में, उन सबका एक एस्टिमेशन निकालोगे ना, एक अंदाज निकालोगे कि इतने हाउस होल्ड है और इतना डिमांड क्रिएट हो सकता है। सो आपका प्रोडक्शन लेवल डिटरमाइन होगा डिपेंडिंग अपॉन डिमांड, ठीक है, डिमांड। बट अब डिमांड तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट है, एंड माइक्रो तो हम लोग पढ़ नहीं रहे हैं, हम लोग तो यहाँ पे मैक्रो पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग डिमांड नहीं, यहाँ पे हम लोग सीखेंगे एग्रीगेट डिमांड के बारे में, ठीक है। हियर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट एग्रीगेट डिमांड। सो हाउ मच विल बी द प्रोडक्शन इन द इकोनॉमी, यानी जीडीपी कितना होगा इकोनॉमी का? जीडीपी इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। व्हाट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट? ग्रॉस इज सम टोटल, डोमेस्टिक मीन्स विद इन द कंट्री, एंड प्रोडक्ट मीन्स गुड्स एंड सर्विसेज। सो विद इन द कंट्री एक देश में कितना गुड्स एंड सर्विसेज बनेगा, वो डिपेंड करेगा साइज ऑफ द एग्रीगेट डिमांड के ऊपर, कितना एग्रीगेट डिमांड है। So what is aggregate demand? Aggregate demand is nothing, it is just sum total of demand for all the goods and services by the entire economy. देखिए यहां लिखा हुआ है मैंने मीनिंग ऑफ एग्रीगेट डिमांड, आइए रीड करते हैं। एग्रीगेट डिमांड रेफर्स टू द टोटल डिमांड, ठीक है। एग्रीगेट डिमांड इज द टोटल डिमांड फॉर बोथ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी, यूज करिएगा एज अ कीवर्ड, ठीक है, नॉट मार्केट, इन द इकोनॉमी। हम लोग मैक्रो पढ़ रहे हैं, माइक्रो नहीं पढ़ रहे हैं। Now, it refers to keywords desired, intended, planned या ex ante आप बोल सकते हो। जब आपने डिमांड चैप्टर किया था माइक्रो इकोनॉमिक्स, तो वहां पे आपने दो टाइप के डिमांड भी पढ़े थे, इफ यू रिमेंबर। वन वॉज एक्स एंटे डिमांड एंड द अदर वन वॉज एक्सपोज्ड डिमांड। जहां पे एक्स एंटे था हाउ मच द कंज्यूमर्स आर विलिंग टू परचेज, एंड एक्सपोज था हाउ मच द कंज्यूमर एक्चुअली परचेजेस, कितना खरीद रहा है। नाउ दिस चैप्टर, ये जो पूरा थ्योरी ऑफ इनकम एम्प्लॉयमेंट का चैप्टर है, वी आर गोइंग टू डील विद दिस चैप्टर फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ प्लान्ड एंड एंटिसिपेटेड, यानी कितना हो सकता है एंड ना कि कितना हो रहा है। दैट इज वाई सेकेंड लाइन में आप कीवर्ड देखो लिखा हुआ है, इट रेफर्स टू डिजायर्ड, इंटेंडेड, प्लान्ड। इन अदर वर्ड्स, we are taking the perspective of ex ante demand concept over here. Everything is anticipated, ठीक है, everything is anticipated, nothing is actual. प्लीज रिमेंबर दैट ये पूरा चैप्टर ही एंटिसिपेशन पे बना हुआ है, assumption पे बना हुआ है, ठीक है। सो एक्स एंटे एक्सपेंडिचर, दैट इज खर्चा बाय द पीपल, दैट इज द टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दे वुड लाइक टू परचेज। नाउ सिंबॉलिकली हम लोग इसके बारे में बात करते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है। नेक्स्ट मैं आपसे पूछता हूं कंपोनेंट्स क्या होंगे, किसके कंपोनेंट्स? कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड के, या आप एग्रीगेट एक्सपेंडिचर भी बोल सकते हो एग्रीगेट डिमांड को। अगर मैं पूछूं कि हमारे देश में कौन कौन डिमांड क्रिएट करता है, who all are there that creates the demand for goods and services in the economy, that depends upon the entities, कितने entities है, right? तो entities का अगर बात करें तो अभी हमने किया that we have household, इकोनॉमिक एंटिटीज में चार एंटिटी है, we have firm, households, firm, we have government and we have foreign sector, right? हाउस होल्ड किन चीज का डिमांड क्रिएट करते हैं? हाउस होल्ड बेसिकली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का डिमांड क्रिएट करते हैं, ऐसे टाइप के गुड्स एंड सर्विसेज विच आर मेंट फॉर अल्टीमेट कंजम्पशन, विच आर नॉट मेंट फॉर फर्दर प्रोडक्शन, नीदर आर दे मेंट फॉर रीसेल, कि उनको अल्टीमेटली यूज ही करना है। हाउस होल्ड का डिमांड डायरेक्ट डिमांड होता है, डिमांड के पर्सपेक्टिव से अगर बात करें, मैंने डिमांड चैप्टर में आपको पढ़ाया भी था, इफ यू रिमेंबर। Then there is something called as direct demand and then there is something called as derived demand. Firms जो goods and services मांगते हैं वो derived होता है, क्यों? क्योंकि उनसे फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बनाया जाएगा जो कि कंज्यूमर को दिया जाए, राइट?
तो हाउस होल्ड जो डिमांड क्रिएट करते हैं वो कंजम्पशन पर्पस के लिए होता है, बोल के उनके डिमांड को हम लोग कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी बोल सकते हैं, ठीक है। Household create the demand for consumption expenditure for meeting their consumption requirement. Talking about firm जो गुड्स एंड सर्विसेज क्रिएट करते हैं, जिनका डिमांड क्रिएट करते हैं, उनका इंटेंशन मंतव्य ये रहता है कि उनसे वो लोग और गुड्स एंड सर्विसेज बनाए ताकि उनका और इनकम बढ़ सके। तो वो लोग मशीन का डिमांड क्रिएट करेंगे, रॉ मटेरियल्स का डिमांड क्रिएट करेंगे, जिससे कि वो लोग फिनिश प्रोडक्ट बना के और बेचेंगे। सो ये जो मशीन पे खर्चा हुआ, रॉ मटेरियल पे खर्चा हुआ, ये उन्हें रिटर्न्स लाके देगा, कैश जनरेट करके देगा और पैसा जनरेट करके देगा। तो उनके लिए ये सॉर्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। सो फर्म्स बेसिकली इन्वेस्टमेंट पे खर्चा करते हैं, तो इट इज लाइक एन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर फॉर द फर्म। टॉकिंग अबाउट गवर्नमेंट, सरकार दोनों में खर्चा करता है, राइट, बोथ। गवर्नमेंट इज बोथ अ कंज्यूमर एंड अ प्रोड्यूसर। गवर्नमेंट कभी कभार गुड्स एंड सर्विसेज परचेज भी करता है अपने पर्सनल रिक्वायरमेंट के लिए, एंड एट द सेम टाइम कभी कभार गुड्स एंड सर्विसेज बना के बेचता भी है थ्रू द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। सो दोनों में खर्चा कर रहा है, बोल के इसको अपना ही दर्जा दिया गया है, नोन एज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। एंड टॉकिंग अबाउट फॉरेन सेक्टर, सी हम लोग जितना भी कोशिश कर ले, an economy can never be self-sufficient. An economy can never produce everything that it wants. It has to be dependent upon the other economy, other countries of the world, for the supply of certain types of goods and services. Like India का अगर बात करें, हम लोग जितना भी कोशिश कर ले, हमारे पास अनलिमिटेड क्रूड या पेट्रोलियम रिजर्व्स नहीं आ सकता है। We have to be dependent upon the Gulf country for the supply of crude and petroleum. So इसीलिए यहाँ पे जो हमारा रिलेशन बनता है उसको हम लोग नेट एक्सपोर्ट्स बोलते हैं। अब सिंस ये नेट पे है, नेट मतलब क्या हो गया, कोई चीज का डिफरेंस होगा, नेट, राइट। सो नेट एक्सपोर्ट्स विल बी एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स, ठीक है। एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स को माइनस करेंगे तो हमें हमारा नेट एक्सपोर्ट्स आ जाएगा, मिल जाएगा। नाउ सो एग्रीगेट डिमांड को कैसे लिखा जा सकता है, हाउ कैन वी शो एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। हम लोग फर्स्ट लेटर लेंगे हाउस होल्ड का, कंजम्पशन का सी, सो एडी और एई इज इक्वल टू सी, दैट इज कंजम्पशन, प्लस फर्स्ट लेटर इन्वेस्टमेंट आई, प्लस फर्स्ट लेटर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का जी, प्लस नाउ ई ले नहीं सकते हैं बिकॉज ई स्टैंड्स फॉर एक्सपेक्टेशन इन इकोनॉमिक्स, हमने डिमांड चैप्टर में पढ़ा भी था, ई स्टैंड्स फॉर एक्सपेक्टेशन। एंड आई भी नहीं ले सकते हैं क्योंकि आई स्टैंड्स फॉर इन्वेस्टमेंट। तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का डिफरेंस को क्या करें, क्या लें, हम लोग सेकेंड लेटर को पकड़ेंगे दोनों का, ठीक है, सेकेंड लेटर विच इज एक्स माइनस एम। एक्सपोर्ट के लिए एक्स, इंपोर्ट के लिए एम। तो ये हो जाएगा आपका कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड, विच इज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय हाउस होल्ड, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बाय फर्म, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बाय गवर्नमेंट एंड नेट एक्सपोर्ट्स बाय द एंटायर इकोनॉमी। और वही लिखा हुआ है यहाँ पे सिंबॉलिकली, एडी और ए इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। एंड इसको किया है मैंने कंपोनेंट्स को यहाँ पे एक्सप्लेन कि कंजम्पशन क्या है, इन्वेस्टमेंट क्या है, गवर्नमेंट क्या है, नेट एक्सपोर्ट क्या है। नाउ अब ये ग्राफ को मत देखो अभी के लिए, इसको भूल जाओ कि ये क्या है, क्योंकि ये देखोगे तो आपका माथा हैंग हो जाएगा। उससे अच्छा अभी आप इसको इग्नोर करो। जैसे ही हम लोग प्रोग्रेस करते जाएंगे आगे चैप्टर में, आपका सब क्लियर होते जाएगा, आपको अपने आप ये ग्राफ भी एंड में आते आते समझ में आ जाएगा क्या दिया हुआ है, ठीक है। अभी के लिए जस्ट कंपोनेंट करना था जो कि हमने कर लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपको नोट्स चाहिए तो प्लीज परचेज कर लीजिए आरए ट्यूटोरियल ऐप पे जाके। नाउ इतना बड़ा अगर इनकम मॉडल, ये आपका इनकम मॉडल है, ठीक है, दिस इज इनकम का मॉडल, दिस एडी और एई वाला जो भी आपने किया, दिस इज कॉल्ड इनकम डिटर्मिनेशन मॉडल। तो इतना बड़ा इनकम डिटर्मिनेशन मॉडल करेंगे तो माथा हो जाएगा हैंग, इतना बड़ा लेके पढ़ाई नहीं किया जा सकता है, बोल के उसको थोड़ा ईज आउट करने के लिए, इजी बनाने के लिए एक बहुत ही जाने माने इकोनॉमिस्ट, जिनका डेफिनेशन जो लोग जूनियर क्लासेस में इको पढ़ते हैं उन्होंने सुना भी होगा, उनका नाम है जे एम कीन्स। इनका पूरा नाम है, जे स्टैंड्स फॉर जॉन, एम स्टैंड्स फॉर मैन्यार्ड,
ठीक है, हिज फुल नेम इज जॉन मैनियार्ड कीन्स या जेएम कीन्स के नाम से भी इनको जाना जाता है। वो बीच में आए और ही इज ऑल्सो रिगार्डेड एज द फादर ऑफ मॉडर्न मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है उनको फादर बोला जाता है। उन्होंने इस मॉडल को थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया, थोड़ा आसान बना दिया। कैसे आसान बना दिया? अजम्पशन लेके, कुछ अजम्पशंस लेके। सबसे पहला अजम्पशन जो उन्होंने लिया वो था that to simplify this income determination model, we are going to undertake the model of a closed economy. ठीक है, we are going to undertake the model of a closed economy. क्लोज इकोनॉमी हमने क्लास 11 में पढ़ा है। क्लोज इकोनॉमी क्या होता है? क्लोज इकोनॉमी ऐसा इकोनॉमी होता है जहां पे फॉरेन सेक्टर ना हो, यानी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट उन्होंने हटा दिया, उड़ा दिया। ठीक है, एंड एट द सेम टाइम ही अंडरटुक द मॉडल ऑफ अ टू सेक्टर मॉडल, जिसको मैं ब्रैकेट में बोलूंगा ही अंडरटुक अ मॉडल ऑफ अ लजे फेयर इकोनॉमी। ये भी आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा एज फार एज आई नो। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जब हम लोग पढ़ते थे, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी वाला चैप्टर था क्लास 11, वहां पे आया था ये वर्ड लजे फेयर। लजे फेयर इकोनॉमी इज वन वेयर देयर इज नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन, जहां पे गवर्नमेंट का हस्तक्षेप, इंटरफेरेंस ना हो। मतलब उन्होंने क्या उड़ा दिया? उन्होंने ये भी उड़ा दिया अपने मॉडल के हिसाब से। So by taking two assumption, that is closed economy model and a laissez-faire economy model, that is two sector model, he made a simplified model of income determination. He made a simplified model of income determination, जिसका नाम उन्होंने अपने नाम के पीछे ही रख दिया, popularly known as the Keynesian model of income determination. ठीक है, Keynesian model of income determination, which was a model of a closed economy, and दूसरा two sector model, and which contains only two things, which is aggregate demand and aggregate expenditure. According to Keynesian model is just C plus I, क्योंकि government and foreign sector नहीं है उसमें। तो ये हो गया आपका Keynesian model, C plus I. I hope that is clear. समझ में आ गया है आपको? आइए थोड़ा सा रीड करते हैं, देन लेट्स गो अहेड। ये हो गया कंपोनेंट। देखिए क्या लिखा हुआ है। While deriving simple Keynesian model of aggregate demand, that is income determination, we have taken a model of a closed economy, that is an economy with no export and import, and also we are not taking into account the expenditure of a government, that is a two sector model या laissez-faire भी आप बोल सकते हो, where symbolically AD is equal to C plus I. ठीक है, तो उन्होंने सिंप्लीफाई कर दिया है चीजों को हमारे लिए। चलिए अब बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। चलो अब हमें डिकोड करना है एग्रीगेट डिमांड होता क्या है। नाउ इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, इक्विलिब्रियम इतना आपने पढ़ा है, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम, मार्केट इक्विलिब्रियम, डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ अ फर्म इन अ परफेक्ट कंपटीशन, चैप्टर 11 जो हमने किया था। यहाँ पे हमको पूरा इकोनॉमी का इक्विलिब्रियम पढ़ना है। ठीक है, द कंट्रीज इक्विलिब्रियम। बट बिफोर वी रीच देयर, हमें पहले पता तो हो डिटेल में कि एग्रीगेट डिमांड है क्या। ये जितना इजी लग रहा है C प्लस आई, उतना इजी है नहीं, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। तो इसको डिटेल में पहले डिकोड करना पड़ेगा, उसके बाद एग्रीगेट सप्लाई सीखना पड़ेगा, एंड देन हम लोग कंट्री का इक्विलिब्रियम पे पहुंचेंगे। सो लेट्स स्टार्ट बाय डिकोडिंग एग्रीगेट डिमांड फर्स्ट। तो एग्रीगेट डिमांड का पहला कंपोनेंट जो है यहाँ पे वो है C, राइट। सो हमारा फर्स्ट टॉपिक होने जा रहा है कंजम्पशन function and propensity to consume। इसको हम लोग शुरू करने जा रहे हैं सबसे पहला फर्स्ट टॉपिक के साथ, कंजम्पशन फंक्शन एंड प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। नाउ फंक्शन, माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग पढ़े आ रहे हैं कि फंक्शन क्या होता है। एनी फंक्शन मैथमेटिकली is supposed to express the relationship between two variable, right? Like this, y is equal to f of x, जहां पे एक वेरिएबल इज डिपेंडेंट, जनरली जो y होता है वो हमेशा डिपेंडेंट होता है, एंड x इज ऑलवेज इंडिपेंडेंट। ठीक है, x इज ऑलवेज इंडिपेंडेंट।
कोई भी फंक्शन हमें दो वेरिएबल के बीच का मैथमेटिकल रिलेशनशिप बताता है, उसको हम लोग फंक्शन बोलते हैं। सिंस हम लोग यहाँ पे कंजम्पशन फंक्शन कर रहे हैं, तो कंजम्पशन फंक्शन किसका रिलेशनशिप बताएगा, हम लोग क्या कंज्यूम करते हैं। वी नो दैट इनकम जो है y इज पार्टली कंज्यूम्ड एंड पार्टली सेव्ड। जो इनकम होता है, इनकम का कुछ हिस्सा हम लोग कंज्यूम करते हैं एंड कुछ हिस्सा हम लोग सेव करते हैं। तो बोल के कंजम्पशन फंक्शन जो है वो हमें बताएगा जब भी वर्ड फंक्शन आए। आई होप आपको पता है कि आपका आंसर राइटिंग जो होगा एकदम फिक्स्ड पैटर्न पे होगा। दैट इज एनी फंक्शन इज सपोज टू एक्सप्रेस अ फंक्शनल, any function expresses a functional relationship between, क्योंकि हम लोग कंजम्पशन फंक्शन पढ़ रहे बोल के वो हमें बताएगा बिटवीन डिजायर्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, कि कितना हम लोग खर्चा करना चाहते हैं कंजम्पशन पे, एक्सपेंडिचर एंड प्लान्ड इनकम, कितना इनकम जनरेट हो सकता है। ठीक है, जो भी इनकम आएगा, जितना भी एस्टिमेटेड इनकम आएगा, उसका कितना प्रपोर्शन कंजम्पशन में जाएगा, वही हमारा कंजम्पशन फंक्शन बताता है। सो कंजम्पशन फंक्शन इज टू टेल अस दैट हाउ मच द कंज्यूमर्स आर विलिंग टू कंज्यूम, कितना वो लोग कंज्यूम करना चाहते हैं। प्लीज याद रखिएगा, सिंस ये चैप्टर पूरी एंटिसिपेटेड पे बेस्ड है बोल के हर जगह आपको कीवर्ड्स लाइक डिजायर्ड, प्लान्ड, इंटेंडेड, इन सब का इस्तेमाल करना ही है। अगर आप नहीं करोगे, आपके स्टेटमेंट से आधा नंबर, एक नंबर टीचर्स डिडक्ट कर देते हैं। सो इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। कीवर्ड्स लाइक डिजायर्ड, प्लान्ड हैज टू बी यूज्ड इन इकोनॉमिक्स फॉर दिस पर्टिकुलर चैप्टर। नाउ कंजम्पशन फंक्शन तो हमने समझ लिया, मैथमेटिकली कैसे एक्सप्रेस किया जाएगा। क्योंकि नॉर्मल फंक्शन को हम लोग y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं एंड यहां पे y एक्सिस पे डिपेंडेंट वेरिएबल आएगा। अब आप खुद ही सोचिए कंजम्पशन और इनकम पे कौन डिपेंडेंट होगा और कौन इंडिपेंडेंट होगा। जाहिर सा बात है इनकम जो होगा वो इंडिपेंडेंट होगा, क्योंकि इनकम तो कैसे भी चेंज हो सकता है, इनकम बढ़ सकता है, घट सकता है, कांस्टेंट रह सकता है, एंड उसके हिसाब से हम लोग कंजम्पशन को एडजस्ट करते हैं। सो ओवर हियर कंजम्पशन इज डिपेंडेंट, राइट। तो इसको अगर मैं इस फंक्शन के तौर पे ब्रेक डाउन करूं तो ये कैसे आएगा, क्योंकि y एक्सिस पे डिपेंडेंट दिखा रहे हैं, कंजम्पशन डिपेंडेंट है, तो हम लोग बोलेंगे दैट कंजम्पशन इज इक्वल टू द फंक्शन ऑफ इनकम, दैट इज y। ठीक है, कंजम्पशन इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ इनकम। सो दिस इज हाउ मैथमेटिकली कंजम्पशन फंक्शन विल बी written as c is equal to f of y. I hope that is clear. नेक्स्ट इज टॉकिंग अबाउट प्रोपेंसिटी। के प्रोपेंसिटी का मतलब क्या होता है भाई? प्रोपेंसिटी का मतलब होता है इंटेंशन। इंटेंशन, कितना सोच रहे हैं कंज्यूम करने का। सो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बेसिकली हमें बताता है हाउ मच द कंज्यूमर्स आर इंटेंडिंग और विलिंग टू कंज्यूम, कितना सोच रहे वो लोग खर्चा करने का। एंड इस प्रोपेंसिटी को मेजर किया जाता है। ठीक है, जो प्रोपेंसिटी है, कंजम्पशन फंक्शन का प्रोपेंसिटी है, बेसिकली इट इज यूज्ड फॉर मेजरिंग द लेवल ऑफ कंजम्पशन। इट इज यूज्ड फॉर मेजरमेंट, मेजरमेंट ऑफ कंजम्पशन। सो मेजरमेंट ऑफ कंजम्पशन, सो इसको मेजर किया कैसे जाएगा? दो तरीका से, प्रोपेंसिटी को दो तरीका से मेजर किया जाएगा, ईदर ऑन द बेसिस ऑफ प्रपोर्शन और ऑन द बेसिस ऑफ चेंज। प्रपोर्शन के बेसिस पे मतलब कि हो गया एवरेज के फॉर्म में, सो वी हैव एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एंड चेंज मतलब तो आप लोग सब जानते ही हो क्या होता है, जब भी इकोनॉमिक्स में चेंज आता है इट इज मार्जिनल। सो दैट इज व्हाई वी हैव एपीसी, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एंड वी हैव एमपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अब एपीसी क्या होगा एंड एमपीसी क्या होगा? सपोजिटली मान लीजिए मैंने कहा कि आपका इनकम है अगर 100, ठीक है, आप 100 रुपए कमा रहे हो, एंड इफ यू आर स्पेंडिंग 60 रुपीज ऑफ योर अर्नड इनकम, आप 60 रुपए खर्चा कर रहे हो, क्या मैं बोलूं दैट 60% ऑफ इनकम इज कंज्यूम्ड? क्या मैं बोल सकता हूं 60% ऑफ इनकम इज कंज्यूम्ड? एंड 60% ऑफ इनकम इज कंज्यूम का मतलब हो गया
60% ऑफ y मतलब हो गया 60/100, राइट? जहां पे ये 60 क्या है, व्हाट इज द 60? 60 इज योर कंजम्पशन एंड व्हाट इज योर 100? 100 इज योर इनकम. तो क्या मैं बोलूं 60 इज माई कंजम्पशन एंड 100 इज माई इनकम. सो जब हम लोग C बाय Y करेंगे प्रपोर्शन के फॉर्म में तो हमें हमारा APC मिल जाएगा. तो APC क्या हो जाएगा? APC विल बी कंजम्पशन इज टू इनकम, C बाय Y. ठीक है, विच विल कम टू 0.6. 0.6 यानी 60% कंज्यूम हो जा रहा है इनकम. आई होप दैट्स क्लियर. आया आपको समझ में? नाउ टॉकिंग अबाउट MPC. supposedly if my income increases and becomes 200 and my consumption is 140, तो मैं आपसे पूछता हूं कि जब इनकम चेंज हुआ उसकी वजह से कंजम्पशन कितना चेंज हुआ. सो व्हाट इज योर डेल्टा सी? चेंज इन कंजम्पशन कितना है? इट इज 60, इट इज 140 minus 60. So 140 minus 60, which is 80. So delta C is 80. And how much is your change in income? 200 minus 100, which is change in income is 100. तो क्या मैं बोलूं कि 80% ऑफ इंक्रीज इनकम, ठीक है, चेंज इन वाई मतलब हो गया इंक्रीज इनकम, कि जितना हमारा इनकम बढ़ा 80% of increased income is consumed. I'm not saying 80% of income is consumed. No. 140 by 200 to 70% हो जाएगा. It is 7/10, right? मैं बोल रहा हूं 80% of increased income is consumed. कि इनकम जितना बढ़ा उस increased income का 80% consume हो रहा है, right? So this 80%, it will be 80% of delta y, which is 80 by 100. जहां पे ये 80 क्या आया था? 80 आया हमारा डेल्टा सी, राइट? एंड 100 हमारा क्या आया था? 100 आया था डेल्टा वाई. यहां पे 100 आ जाएगा डेल्टा वाई. सो डेल्टा सी बाय डेल्टा वाई विल गिव अस मार्जिनल, दैट इज चेंज. सो अगर आपसे पूछा जाए एमपीसी कैसे निकलेगा, तो एमपीसी निकलेगा चेंज इन कंजम्पशन बाय चेंज इन इनकम करके. ठीक है, change in consumption by change in income. I hope that is clear. Now, next thing to note about is that MPC, ठीक है, marginal propensity to consume. MPC is the slope of consumption function. MPC is the slope of consumption function. क्यों slope? MPC slope क्यों है? चलिए, मैथ्स में स्लोप कैसे निकालते हैं? हाउ डू वी कैलकुलेट स्लोप? आपको पता होगा स्लोप का मैथमेटिकल डिनोशन इज m. आपने किया भी होगा इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल टू mx प्लस c, जहां पे ये m का मतलब होता है स्लोप, राइट? एंड मैथ्स में हम लोग स्लोप कैसे निकालते हैं? स्लोप इज कैलकुलेटेड एज y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1. दिस इज हाउ वी कैलकुलेट स्लोप. इसको मैं इस तरीके से भी बोल सकता हूं कि स्लोप इज चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, y अपॉन x. अब जब हम लोग क्वाड्रेंट बनाएंगे y ओ x, y एक्सिस में जनरली हम लोग डिपेंडेंट वेरिएबल दिखाते हैं. तो यहां डिपेंडेंट तो है कंजम्पशन, और x पे हम लोग इंडिपेंडेंट दिखाते हैं, जो कि हमारे केस में इट इज इनकम. इनकम इज इंडिपेंडेंट. तो इस y एक्सिस और x एक्सिस को अगर मैं रिप्लेस कर दूं डेल्टा y, क्योंकि y एक्सिस में कंजम्पशन दिखा रहे हैं तो मैं इसको बोल सकता हूं इट इज डेल्टा c, एंड x एक्सिस में इनकम दिखा रहे हैं तो जिसको हम लोग डिनोट कर सकते हैं चेंज इन इनकम के थ्रू डेल्टा y, डेल्टा c बाय डेल्टा y, चेंज इन कंजम्पशन बाय चेंज इन इनकम. एंड वी नो दैट डेल्टा c बाय डेल्टा y हमने अभी किया इज इक्वल टू MPC. तो हियर इट इज दैट MPC इज द स्लोप ऑफ कंजम्पशन फंक्शन, या स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व जो हम लोग बनाएंगे उसका चेंज स्लोप जो है वो MPC ही बताता है. आई होप दैट इज क्लियर मैथमेटिकली. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, ग्राफ की तरफ जाते हैं. सबसे पहले मैं आपको दो अलग अलग ग्राफ बना के दिखाऊंगा. यहां
उसके बाद मैं आपको फाइनल कंबाइंड ग्राफ दिखाऊंगा, ठीक है। y एक्सिस ओरिजिन, x एक्सिस ओरिजिन, y एक्सिस। सबसे पहले मैं आपको इनकम का ग्राफ बना के दिखाता हूं। बेसिकली ये भी एंटिसिपेटेड है या ये भी अज्यूम्ड है यहाँ पे सिंप्लीफाइड केनेशियन मॉडल में। मैं आपसे पूछता हूं एक कंट्री के अंदर में इनकम कैसे चेंज हो सकता है, कैसे इंक्रीज हो सकता है? आप बोलोगे भैया कोई भी पॉसिबिलिटी है, इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज कर सकता है, डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज कर सकता है, कांस्टेंट रेट से इंक्रीज कर सकता है, कांस्टेंट रह सकता है यानी इंक्रीज ही ना हो, डिक्रीज कर सकता है, डिक्रीजिंग रेट से डिक्रीज कर सकता है, इंक्रीजिंग रेट से डिक्रीज कर सकता है, कांस्टेंट रेट से डिक्रीज कर सकता है। मल्टीपल पॉसिबिलिटीज आर देयर, राइट। बट क्योंकि हम लोग सिंप्लीफाइड कीनेशियन मॉडल का बात करें बोल के, ये ऐसा मानेंगे, हम लोग ऐसा अज्यूम करेंगे चीजों को सिंप्लीफाई करने के लिए कि हमारे देश में इनकम इंक्रीज तो करेगा बट कुछ इस तरीके से इंक्रीज करेगा। इट विल इंक्रीज, बट क्योंकि आप क्या देख पा रहे हो कितना कितना का डिफरेंस है, हर बार 100 का डिफरेंस ईच है बोल के, इट विल इंक्रीज एट अ कांस्टेंट रेट, ठीक है। इकोनॉमी के अंदर में इनकम विल इंक्रीज बट एट अ कांस्टेंट रेट, इट इज अज्यूम्ड, इट इज एंटिसिपेटेड, एंड दैट इज व्हाई कांस्टेंट रेट ऑफ इनकम को जब आप प्लॉट करके बनाओगे, जो आपका गैप आएगा लाइक 100, 200, 300, 400, तो इसका जब लोकस का पोजिशनिंग आप करोगे तो वो उसको ज्वाइन करने से जो हमें ग्राफ मिलेगा वो एक्चुअली कुछ इस टाइप से ग्राफ निकल के आएगा। इट विल कम एंड मीट एकदम tan 45 डिग्री एंगल पे आके, ठीक है, tan 45 डिग्री एंगल पे आके। इन अदर वर्ड्स हमारा इनकम विल स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन एंड विल इंक्रीज एट अ कांस्टेंट रेट। एंड क्योंकि आप जानते हो कि मैथ्स में tan 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, इट इज इक्वल टू 1, बोल की इनकम का स्लोप जो आएगा, वैल्यू आएगा, वो भी होगा इक्वल टू 1। इनकम विल बी इक्वल टू यूनिटी। व्हाई? बिकॉज 45 डिग्री एंगल पे बाइसेक्ट कर रहा है, क्वाड्रेंट इज 90 डिग्री एंगल एंड 45 डिग्री एंगल पे इनकम कर्व बाइसेक्ट कर रहा है, बोल के tan 45 का वैल्यू 1 होगा, बोल के इनकम का भी वैल्यू 1 आएगा। दैट इज द स्लोप ऑफ इनकम, ठीक है। अब बात करते हैं कंजम्पशन का। अब आप खुद सोचिए, वाई एक्सिस पे मैं यहां लिख लेता हूं कंजम्पशन एंड एक्स एक्सिस में मैं लिख लेता हूं इनकम। अब आप खुद सोचिए कि एज एन इकोनॉमी, इकोनॉमी को छोड़ दो, चलो आप एज एन इंडिविजुअली सोच लो। एज एन इंडिविजुअल अगर आप कुछ नहीं भी अर्न करते हो, इवन इफ यू आर अर्निंग नथिंग, जीरो, क्या कभी भी ऐसा होगा कि आप कुछ नहीं कंज्यूम करोगे? इज दैट पॉसिबल? इट इज नॉट पॉसिबल। बोल के कंजम्पशन कभी भी ओरिजिन से शुरू नहीं हो सकता है, ठीक है। कंजम्पशन कैन नेवर स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन, रादर कंजम्पशन हमेशा अबव ओरिजिन से ही स्टार्ट होगा, अबव ओरिजिन से ही स्टार्ट होगा, डिपिक्टिंग दैट कंजम्पशन सी कैन नेवर बी इक्वल टू जीरो। कंजम्पशन कभी भी जीरो नहीं हो सकता है इकोनॉमी में, चाहे आप कमाओ ना कमाओ, रोटी कपड़ा मकान तो बेसिक है, इतना तो सबको चाहिए ही। सो कंजम्पशन जीरो नहीं होगा एंड देयरफॉर ये पर्टिकुलर लेवल ऑफ कंजम्पशन आई रिप्रेजेंट इट बाय छोटा लेटर ए, ठीक है। ये पर्टिकुलर लेवल ऑफ कंजम्पशन जो हुआ विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनकम, इनकम हो नहीं हो इतना तो चाहिए, इतना कंजम्पशन बेयर मिनिमम है, इसको बुलाया जाएगा, इसको कहा जाएगा रिगार्डेड एज autonomous consumption, ठीक है। दिस लेवल ऑफ कंजम्पशन विल बी रिगार्डेड एज autonomous consumption। नाउ वर्ड autonomous का मतलब क्या होता है? autonomous means independent, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनकम, चाहे इनकम हो नहीं हो, इतना कंजम्पशन तो बेयर मिनिमम है। मान लीजिए 100 करोड़ आ रहा है यहाँ, 100 CR, तो ये 100 CR हमारा बेयर मिनिमम है, इतना हमें चाहिए ही चाहिए। एंड उसके बाद अगर टॉकिंग अबाउट द जनरल रिलेशनशिप, द मोर वी अर्न इज द मोर वी कंज्यूम, एंड दैट इज व्हाई कंजम्पशन कर्व विल बी पॉजिटिवली स्लोपिंग लाइक दिस। Consumption will be positively sloping like this, depicting that the more we earn, जितना हमारा इनकम बढ़ेगा, Y0, Y1, हम लोग उतना कंजम्पशन बढ़ाएंगे, ठीक है, हम लोग उतना कंजम्पशन बढ़ाएंगे, C0, C1। एक और चीज अगर आप ध्यान से नोट करो,
वो क्या है कि क्या आप कंजम्पशन के बीच का गैप देख पा रहे हो? कैन यू सी योर डेल्टा सी? इट इज सो स्मॉल एंड कैन यू सी योर चेंज इन इनकम? इनकम बहुत ज्यादा है। ये क्या बता रहा है हमें? ये बोल रहा है कि चेंज इन कंजम्पशन जो है वो हमेशा लेस देन चेंज इन इनकम ही आएगा, इनकम से कम होगा। क्यों? इसके पीछे भी कारण है, रीजन व्हाई। क्या कभी भी ऐसा होगा आप 100 रुपए कमा रहे हो, आप 50 रुपए उड़ा रहे हो, आप 200 कमाओगे तो आप 150 उड़ा दोगे, 150 पूरा उड़ा दोगे, मतलब आपका इनकम 100 से इंक्रीज किया तो पूरा इंक्रीज इनकम को आप स्पेंड कर दोगे? ऐसा पॉसिबल है? ऐसा कभी होता है? नहीं होता। इंक्रीज इनकम, जब इनकम बढ़ेगा तो उस इंक्रीज इनकम को पार्टली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा बिटवीन कंजम्पशन एंड सेविंग्स एज वेल। सो सम पार्ट of increased income is also devoted to savings. That is why जब इनकम बढ़ेगा कंजम्पशन कम प्रपोर्शन से इंक्रीज होगा, इनकम के चेंज से कंजम्पशन का चेंज कम होगा, बिकॉज इंक्रीज्ड इनकम इज ऑल्सो पार्टली डिवोटेड टू सेविंग्स। सेविंग्स के पास भी जाएगा, बोल के डेल्टा सी विल बी लेस देन डेल्टा वाई। इन अदर वर्ड्स, अगर हम लोग बात करें चेंज के टर्म पे, तो इससे हमें समझ में आता है कि जो एमपीसी होगा, एमपीसी क्या था? इट वाज द स्लोप, राइट? हमने अभी किया था स्लोप ऑफ कंजम्पशन। जो एमपीसी होगा वो लेस देन स्लोप ऑफ इनकम होगा, यानी लेस देन 1 होगा। 1 क्या है? ये अगर स्लोप ऑफ कंजम्पशन है तो दिस 1 इज द स्लोप ऑफ इनकम। ये इनकम का स्लोप है, क्योंकि हमने अभी एंटिसिपेट किया इनकम इज एट अ tan 45 डिग्री एंगल एंड tan 45 का वैल्यू इज इक्वल टू 1, सो दिस 1 इज योर स्लोप ऑफ इनकम। ठीक है? एंड कंजम्पशन का स्लोप इनकम के स्लोप से हमेशा कम ही रहेगा, क्योंकि increased income is never fully spent, it is partly spent, यानी it is partly consumed and it is partly saved as well. That is why. I hope that is clear. इतना आपको आ गया समझ में, राइट? तो चलिए इन दोनों ग्राफ को ज्वाइन करते हैं एंड अपना फाइनल ग्राफ बनाते हैं। वील रैप अप दिस वीडियो। आपको समझ में आ रहा होगा ये चैप्टर कितना कंसेप्चुअल है और भारी भी है। मैं चाहूंगा कि आप इसको धीरे धीरे करके समझो, एक बार में ना समझने का कोशिश करो, क्योंकि आपका माथा हैंग हो जाएगा अदरवाइज। ठीक है? यहां मैं लिखूंगा डिजायर्ड कंजम्पशन, यहां आ जाएगा आपका इनकम। तो कंबाइन करते हैं। सबसे पहले इनकम का कर्व बनाते हैं। इनकम बनेगा आपका 45 डिग्री एंगल पे, राइट? प्लीज 45 डिग्री लिखना मत भूलिएगा, इसके लिए भी मार्क्स डिडक्ट हो जाता है, y विच इज इक्वल टू 1। अब नेक्स्ट है आपका कंजम्पशन कर्व बनाने का। ये बन जाएगा आपका कंजम्पशन C। आपने सीखा दैट दिस लेवल ऑफ कंजम्पशन इज कॉल्ड ऑटोनॉमस कंजम्पशन, यानी ये लेवल ऑफ कंजम्पशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनकम। इनकम हो नहीं हो, इतना कंजम्पशन होना ही है, बेयर मिनिमम। ठीक है? यहां आप देख पा रहे हैं कि यहां हमें मिल रहा है इंटरसेक्शन पॉइंट, राइट? हियर वी आर गेटिंग द इंटरसेक्शन। इसका नाम दे देता हूं y0, कुछ नाम रख दिया a। नाउ अप टू दिस लेवल, अप टू OYO लेवल, हम लोग क्या देख पा रहे हैं? लेट मी राइट ओवर हियर, अप टू OYO कॉमा, हम लोग क्या देख पा रहे हैं? दैट कंजम्पशन ऊपर है, इनकम नीचे है, राइट? कंजम्पशन इज अबव इनकम। सो क्या मैं बोलूं C इज ग्रेटर देन Y? C is greater than Y. So up to OYO level, C is more than Y. In other words, कुछ ऐसा सिनेरियो, आप कमा रहे हो 100, आप खर्चा कर रहे हो 150, 150। अब आप बोलोगे ये कैसे पॉसिबल है? क्यों नहीं हो सकता है ना? तो आपने 100 रुपए कमाया, 100 तो उड़ा दिया, प्लस आपने एडिशनल और 50 रुपीज खर्चा किया, तो ये 50 रुपीज गया कहां से? ये आपने निकाला यहां से, सेविंग्स में से। एक तो होता है सेविंग्स, एंड अगर सेविंग्स को भी आप कंज्यूम करना शुरू कर दो, यानी आप विड्रॉ करके यूज करना शुरू कर दो, तो उसको बोला जाता है डिस सेविंग्स। ठीक है? उसको हम लोग बोलते हैं डिस सेविंग्स। मतलब ये पूरा जोन जहां पे C इज ग्रेटर देन Y, ये पूरा जोन हमें बताएगा दैट दिस इज
डिस सेविंग्स। यहां इकोनॉमी अपना डिस सेविंग्स कर रहा है, यानी अपने पास्ट सेविंग्स को भी विड्रॉ कर रहा है। बट जैसे हम लोग देख रहे हैं कि इनकम प्रोग्रेस कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, जो डिस्टेंस है डिस सेविंग्स का वो कम होते जा रहा है। मतलब हमें समझ में आ रहा है कि सेविंग्स आना स्टार्ट होगा धीरे धीरे, जो डिस सेविंग्स का प्रपोर्शन है वो कम होते जा रहा है। ठीक है, द मोमेंट इंटरसेक्शन हुआ पॉइंट ए पे, यहां पे, यहां हम लोग क्या देख पा रहे हैं, दैट सी इज इक्वल टू वाई, राइट। मतलब आप कमा रहे हो 200, आप खर्चा भी कर रहे हो 200, तो सेविंग्स कितना हो जाएगा, सेविंग्स हो जाएगा 0। तो ओवर हियर यू विल सी दैट सेविंग्स यहां पे है 0, सेविंग्स इज 0 ओवर हियर, एंड इसीलिए इसको बोला जाएगा ब्रेक इवन। ठीक है, दिस विल बी योर ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम। ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम, ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम वहां होगा जहां पे कंजम्पशन इज इक्वल टू इनकम, दैट विल बी ब्रेक इवन लेवल। आई होप दैट्स क्लियर। सो एट OYO where C is equal to Y, यहां हो रहा था डिस सेविंग्स, राइट, यहां हो रहा था डिस सेविंग्स, एंड यहां हो जाएगा S is equal to 0, सेविंग इज 0। एंड नाउ बियॉन्ड OYO, यानी इस जोन के बाद, इस जोन के बाद बियॉन्ड OYO लेवल हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि इनकम ऊपर है और कंजम्पशन नीचे है, राइट। तो C इज लेस देन Y, कंजम्पशन नीचे इनकम ऊपर है, C इज लेस देन Y, यानी कुछ ऐसा कि आप कमा रहे हो 300, you're spending 250, तो हाउ मच इज योर सेविंग, योर सेविंग विल बी 50। तो ये जोन हमें बता रहा है कि सेविंग्स यानी पॉजिटिव सेविंग्स आना स्टार्ट हो गया है। ठीक है, तो मतलब ये जो पूरा जोन आएगा, ये जो पूरा जोन आएगा जो ये ऐसे खुलते जा रहा है, ये डिनोट करेगा हमारा सेविंग्स ऑफ द इकोनॉमी। ठीक है, सेविंग्स ऑफ द इकोनॉमी। तो यहां पे C इज लेस देन Y बोल के दिस विल बी डिनोटेड बाय सेविंग्स वाला पोर्शन। आई होप दैट इज क्लियर, आपको आ गया समझ में, राइट। चलिए अब थोड़ा डेरिवेशन का बात करते हैं, प्रपोर्शंस के फॉर्म पे। आइए एपीसी निकालते हैं एंड देन एमपीसी निकालते हैं। ठीक है, एपीसी कैसे निकलेगा, एपीसी विल बी C बाय वाई, C बाय वाई करके, तो आइए निकालिए। 150 by 100 will be 1.5, 200 by 200 will be 1, 250 by 300 will be 25 by 30, 25 by 30 will be 5 by 6, and 5 by 6 will be, one second, let me calculate, 0.83, 0.83। तो हम लोग क्या देख पा रहे हैं, व्हेन कंजम्पशन, क्या मैं बोलूं दैट व्हेन कंजम्पशन वाज ग्रेटर देन इनकम, एपीसी वाज मोर देन 1, राइट। तो इस जोन के लिए व्हेन C इज मोर देन Y, तो आई कैन से दैट एपीसी इज ग्रेटर देन 1, 1 से ज्यादा यानी इनकम से ज्यादा है। उसके बाद व्हेन कंजम्पशन इज इक्वल टू इनकम, 200 इज इक्वल टू 200, एपीसी इज इक्वल टू 1, तो वेयर सेविंग्स इज 0, एपीसी ओवर हियर विल बी इक्वल टू 1, इस पॉइंट पे, पॉइंट ए पे। And when consumption is less than income, when consumption is less than income, APC is less than 1. So ये जोन के लिए APC will be less than 1, ये पूरे जोन के लिए APC will be less than 1. So आपको ये डेरिवेशन आना चाहिए। सपोजिटली क्वेश्चन में दे देगा what will be the value of APC if S is equal to 0. तो if S is equal to 0, it means C is equal to Y, and therefore APC will be equal to 1. तो यू शुड बी एबल टू कोरिलेट, इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा ये सारे चीजों के ऊपर। एंड नाउ टॉकिंग अबाउट एमपीसी, एमपीसी पहला आएगा नील, नथिंग, डैश, चेंज हमेशा अगला से निकलता है। तो चेंज इन कंजम्पशन कितना है, चेंज इन कंजम्पशन इज 200 minus 150, 50, एंड चेंज इन इनकम इज 100, सो 50 by 100 विल बी 0.5, एंड देन उसके बाद 250 minus 200 is 50, 300 minus 200 will be 100, which will be 0.5. तो एमपीसी विल बी 0.5, 0.5। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको कहा कि एमपीसी
MPC हमेशा 1 से कम ही आएगा. MPC विल ऑलवेज बी लेस देन 1, क्योंकि जब भी इनकम इंक्रीज होगा कभी भी पूरी इनकम, इंक्रीज इनकम को कंज्यूम नहीं किया जाएगा. ठीक है, तो आइए इससे हमारा प्रॉपर्टीज बनाते हैं कंजम्पशन कर्व का. प्रॉपर्टीज यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स बनाते हैं. क्या कैरेक्टरिस्टिक्स बनेगा? प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंजम्पशन. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंजम्पशन. पहला प्रॉपर्टी निकलेगा डायरेक्ट रिलेशन, डायरेक्ट या पॉजिटिव कोरिलेशन between consumption and income. Do you agree or not? कि आप खुद देखिए, when income is increasing, consumption is also increasing. In other words, the more we are earning is the more we are spending. So there is a direct relation or a positive correlation between consumption and income. As income increases, consumption also increases. Right? दूसरा property, proportion of income consumed, यानी कि APC. मैंने बताया था ना प्रोपेंसिटी, जब बता रहा था आपको, प्रोपेंसिटी में हम लोग जो प्रपोर्शन है उसको एवरेज के फॉर्म में मेजर करते हैं. राइट? सो प्रपोर्शन ऑफ इनकम कंज्यूम यानी APC जो है वो डिक्रीज हो रहा है हमारा इनकम बढ़ने से. आप खुद देखिए, 1 is less than 1.5 and 0.83 is less than 1. So proportion of income consumed क्या होगा? APC proportion of income consumed decreases. Very important. ठीक है, APC decreases as income increases. जैसे ही इनकम बढ़ रहा है. Why? Because we are moving towards savings. That is why we are consuming less. The proportion of income consumed is decreasing because we are moving towards savings. And तीसरा, slope of consumption is less than slope of income. कंजम्पशन का स्लोप क्या होता है? कंजम्पशन का स्लोप है MPC और इनकम का स्लोप क्या है? 1. सो इन अदर वर्ड्स जो MPC है वो लेस देन 1 है. MPC is less than 1. Why? Because increased income will never be fully consumed. कभी पूरी उसको कंज्यूम नहीं किया जाएगा. It will be partly consumed and partly saved. At the same time, MPC will also be greater than 0. 0 से भी ज्यादा आएगा, क्योंकि आप खुद सोचिए, आप 100 रुपए कमा रहे हो, आप 50 उड़ा रहे हो. अगर आप 200 कमाओगे, आप 150 नहीं उड़ाओगे, मतलब आप अगला वाला 100 रुपए पूरा नहीं उड़ाओगे. तो ऐसा भी नहीं है कि अगर आप 100 कमा रहे हो 50 उड़ा रहे हो, और आप 200 कमाओगे तो भी आप 50 ही उड़ाओगे. नो, आप नेक्स्ट लेवल ऑफ इंक्रीज इनकम को पूरी सेव भी नहीं करोगे, आप उसको पार्टली कंज्यूम एंड पार्टली सेव करोगे बोल के MPC जो है ना पूरी मतलब इंक्रीज इनकम ना पूरी कंज्यूम हो जाएगा ना पूरी सेव हो जाएगा. सो देयरफॉर MPC समवेयर बिटवीन 0 and 1. ठीक है, is between 0 and 1. Now please remember that some teachers also use MPC as छोटा लेटर c. ठीक है, छोटा लेटर c. They both mean the same thing. They both mean the same thing. बड़ा C, capital C represents consumption and छोटा c represents slope of consumption. ठीक है, बड़ा C is consumption but छोटा c is slope of consumption. In other words, it is MPC. So मेरा एडवाइस ये रहेगा, छोटा c नहीं यूज करके MPC यूज करो, आप कंफ्यूज नहीं होंगे. ठीक है, एंड आई थिंक दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. वी विल स्टॉप. आपको शायद समझ में आ गया होगा दैट कंसेप्चुअली दिस चैप्टर इज भारी, so it will take time to master over it. So I hope you liked my explanation, and if you are liking my content, then I would request you to please like, share, subscribe and share it with your friends. Stay tuned. I'll be coming up with more such quality content. Keep studying, keep smiling. I'll see you in my next video. Take care. Bye bye.